Bismillahirrahmanirrahim. Student, in this video, inshallah, I will discuss how to find domain and range of this piecewise function, and we will also sketch the graph of this piecewise function. First, we must understand why this function is called piecewise function. This function is called piecewise function because if you see that g of x equals to two values, x minus 1 when x is strictly less than 3, and g of x equals to 2x plus 1 when x is greater than or equal to 3. Such type of functions are called piecewise function. A function which has more than one piece is called piecewise function. So we will use g of x equals to x minus 1 when x is strictly less than 3, and we will use g of x equals to 2x plus 1 when x is greater than or equal to 3. X means input values and y means output values. Input values are called domain and output values are called range of the function. First of all, we will sketch the graph of this part of the piecewise function g of x equals to x minus 1 when x is strictly less than 3. For sketching the graph, we have to construct the table for input values and output values. So let's construct the table for input and output values. And we know that input values are represented by small x and output values are represented by y. And y equals to g of x, and g of x in this case will be equal to x minus 1. Since x is strictly less than 3, we cannot take x equals to 3. So when x equals to 2, put this value in the given part. So we get 2 negative 1 equals to 1. When we take x equals to 1, we get 1 negative 1 equals to 0. When we take x equals to 0, we get 0 negative 1 equals to negative 1. So this is the table for input values and for output values of this part of the function. Now we will sketch the graph of this part. For this, we need x-axis and y-axis. This is the y-axis, and this is the x-axis. X values we will take x values on the horizontal axis. Let's suppose this is 1, 2, 3, 4 up to positive infinity. 1, 2, 3, 4, and on the left side we have negative values, negative 1, negative 2, negative 3, so on up to negative infinity. And the output values, which are represented by small y, we will take on the y-axis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And on the negative y-axis, we will take the negative y values, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. Okay, if you look at this table, when we take x equals to 2, we get y value equals to 1. When we take x equals to 2, the y value is equal to 1. So we mark this point. When we take x equals to 1, the y value is 0. This is y equals to 0. Remember this thing, on the x-axis, y coordinate is always equal to 0. And when we take x equals to 0, y equals to negative 1. When x equals to 0, y is equal to negative 1. Join these points and we get the graph of this part of the circle, this part of the function, that is g of x equals to x minus 1. Now, if you look at the domain of this function, g of x is strictly less than 3. We cannot take x equals to 3. Just for the reference point, if we take x equals to 3, what is our output value? So 3 negative 1 equals to 2. At x equals to 3, we get y equals to 2. At x equals to 3, we get y equals to 2. But at this point, I will draw the open circle. Why I am drawing the open circle? Open circle मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि हम x equals to 3 डोमेन में कंसिडर नहीं कर सकते, तो जो y वैल्यू है ये हमारे पास आउटपुट के तौर पर नहीं आ सकती, क्योंकि x equals to 3 हम कंसिडर ही नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया.
याद रखिएगा ओपन सर्कल का मतलब ये होता है जिस पॉइंट पे हम ओपन सर्कल ड्रॉ करते हैं इसका मतलब है कि ये वैल्यू शामिल नहीं है। लेकिन 3 और 2 के दरमियान जितनी एक्स वैल्यूज हैं ये सारी शामिल है और इन पे जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज हैं ये भी सारी शामिल होंगी। इसलिए मैंने 3 पे ओपन सर्कल ड्रॉ कर दिया कि 3 पे जो आउटपुट आ रही है 2 ये इंक्लूड नहीं होगी। ये तो था ग्राफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पीस वाइज फंक्शन। अगर आप सेकंड पार्ट को कंसिडर करें तो सेकंड पार्ट किसके इक्वल है? g of x equals to 2x plus 1 when x is greater than or equal to 3। इसके अगर हम टेबल कंस्ट्रक्ट करें, टेबल हमारे पास इनपुट और आउटपुट वैल्यूज का इस तरह आ जाएगा x एंड y is equal to, y इस केस में किसके इक्वल होगा? 2x plus 1। तो इसमें हम x equals to 3 कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज x is greater than equal to 3। सो व्हेन आप 3 जब यहाँ पे लेंगे 3 पे आउटपुट वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 into 3 plus 1 equals to 7। और when we take x equals to 4 we get 2 into 4 plus 1 equals to 9। तो आइए इन पॉइंट्स इनपुट और आउटपुट वैल्यूज को अपने स्केच करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पर। तो when we take x equals to 3 the output value is 7। when we take x equals to 3 the output value is 7। so यहाँ पे हमारे पास 7। तो क्या हम 7 को सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे या ओपन सर्कल से? जरा आप सोचिएगा, क्या 3 डोमेन में शामिल है या नहीं इस फंक्शन की? 3 इस फंक्शन की डोमेन में शामिल है बिकॉज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। चूंकि 3 इसकी डोमेन में शामिल है तो जो आउटपुट 7 आ रही है ये हमारे पास एक पॉसिबल आउटपुट है, ये हमारे पास आउटपुट के तौर पर आएगा इस पार्ट ऑफ द फंक्शन में, इसलिए हम इसको सॉलिड सर्कल पे रिप्रेजेंट करेंगे। 4 पे हमारी क्या आउटपुट आ रही है? 9। तो ये 9 है और 4 पे आ रही है 9। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, इनको हम ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा सेकंड पार्ट ऑफ द पीस वाइज फंक्शन का। अब हम इस ग्राफ की हेल्प से डोमेन फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इस पीस वाइज फंक्शन की डोमेन क्या आएगी। तो इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए हम अपनी आसानी के लिए एक रियल लाइन डिस्कस कर लेते हैं, रियल लाइन की हेल्प से डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये मैंने एक रियल लाइन ड्रॉ की आपके सामने, सेंटर में क्या आ गया? 0 1 2 3। On the left side we have -1, -2, -3, so on up to negative infinity, and here we have so on up to positive infinity। तो अब अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? x is strictly less than 3। g of x equals to x minus 1 when x is strictly less than 3। it means we cannot take x equals to 3। तो 3 पे मैं क्या करूंगा? एक ओपन सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। ओपन सर्कल में इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं कि 3 हमारे पास शामिल नहीं है, x is strictly less than 3, इसमें मैंने ओपन सर्कल ड्रॉ कर दिया है। और बाकी तमाम वैल्यूज जो 3 से लेस हैं वो इसकी डोमेन में शामिल होंगी अप टू नेगेटिव इंफिनिटी तक। लेकिन जब आप सेकंड पार्ट को चेक करते हैं पीस वाइज फंक्शन के, g of x equals to 2x plus 1, x is greater than or equal to 3। तो इस पार्ट में 3 शामिल है और 3 भी शामिल है और 3 से तमाम बड़ी वैल्यूज शामिल हैं अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो जो हमने 3 को ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट किया था फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि 3 उस केस में शामिल नहीं था, लेकिन सेकंड केस में चूंकि 3 शामिल है इसलिए हम इसको सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 3 भी अब हमारे पास शामिल हो गया है और ये वैल्यूज कहां तक जाएंगी? अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएंगी हमारे पास। तो अब आप बड़ी आसानी से डोमेन ऑफ दिस पीस वाइज फंक्शन आप देख सकते हैं फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। 3 फर्स्ट पार्ट में तो शामिल नहीं था लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द पीस वाइज फंक्शन में वो शामिल था, इसलिए जो ओवरऑल रेंज बन जाएगी हमारे पास पीस वाइज फंक्शन की g ऑफ x की, वो क्या बन जाएगी? डोमेन ऑफ g विल बी इक्वल टू फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। याद रखिएगा इंफिनिटी को हम हमेशा राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ओपन इंटरवल में लिखते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं? अगर आप रियल लाइन को ही देखें तो ये हमारे पास सारे क्या बन जाते हैं? ये सारे हमारे पास बन जाते हैं ऑल रियल नंबर। सो डोमेन ऑफ दिस पीस वाइज फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। जिस तरह मर्जी आप लिखें, इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट ऑफ रियल नंबर भी लिख सकते हैं। ये तो आगे बात डोमेन ऑफ पीस वाइज फंक्शन। अब अगर हम रेंज की बात करें
तो रेंज को अगर आप देखें, रेंज का मतलब आउटपुट वैल्यूज, तो आउटपुट वैल्यूज का मतलब वाई वैल्यूज। अब आप देखें कौन सी वाई वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं इस फंक्शन की रेंज में। तो अगर आप देखें, तो आप देखें क्या टू रेंज में शामिल है या नहीं। तो चूंकि अब मैंने टू पे ओपन सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, इसका मतलब है जो टू है ये हमारी रेंज में शामिल नहीं है। और टू से स्मॉलर जितनी भी वैल्यूज हैं, टू तो हमारी रेंज में शामिल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ओपन सर्कल ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे आप देखें इसके क्रॉस, तो लेस देन टू सारी वैल्यूज पॉसिबल है। y की जितनी भी वैल्यूज हैं जो टू से लेस हैं वो सारी पॉसिबल है, और कहां तक जाएंगी, आप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगी। इसकी जो रेंज बन जाएगी आप देख सकते हैं ग्राफ में भी नजर आ रहा है, रेंज ऑफ g इज इक्वल टू फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी से हम कहां पे जाएंगे, टू। टू शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने ओपन सर्कल ड्रॉ किया गया है, तो टू, क्योंकि टू शामिल नहीं है इसलिए मैं इसको ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखूंगा, यूनियन। तो ये सारी वो वाई वैल्यूज हैं जो हमारे पास आउटपुट के तौर पर नहीं आ सकती, जिनको मैं यहाँ डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करूँ। ये वो वाई वैल्यूज हैं जो हमारे पास रेंज में नहीं आ रही, ये शामिल नहीं है। एक्स की आप कोई भी वैल्यू लें, ये जो वैल्यूज हैं लाइक टू से बड़ी, टू और टू से बड़ी और सेवन से छोटी, यानी लेस देन सेवन और टू, टू और टू से ग्रेटर वैल्यूज, ये हमारे पास आउटपुट के तौर पर नहीं आ रही। तो टू भी शामिल नहीं है, टू से बड़ी वैल्यूज भी शामिल नहीं है, अप टू सेवन। तो सेवन हमारे पास इंक्लूड है क्योंकि इसको मैंने सॉलिड सर्कल से प्रेजेंट किया हुआ है। तो हम सेवन, सेवन पे हम क्लोज इंटरवल लिखेंगे। क्लोज इंटरवल इसलिए लिखेंगे कि सेवन इंक्लूड है हमारे रेंज में, और ये कहां तक जाएंगी, अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएंगी। सो ये हमारे पास रेंज आ जाएगी, रेंज ऑफ दिस पीस वाइज फंक्शन। So students, this is how we can find the domain and range of the piecewise function. साथ साथ हमने डिस्कस किया कि piecewise function को हम स्केच कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास एक piecewise function था g of x, जिसकी हमने डोमेन फाइंड की, और डोमेन हमारे पास क्या आ गई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या आई, फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू टू। टू शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्कल है, यूनियन सेवन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। So that's all about how to find domain and range of the piecewise function. Hopefully आपको समझ आया होगा।